Hello my dear students, a precious good morning to all of you. As you know, this is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Shubhra Singh Children Academy. In last lecture we were discussed about electronic theory of balancing. Today we are going to start a new topic, types of bond. Type of bonds. Okay. First question arises that what is the requirement of bonds? Why elements come close with each other and make a bond? Okay, क्यों एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? इसका आंसर क्या है कि ओनली फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, केवल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. ओके, देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड में फॉर्मेशन देखेंगे. द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स. द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स, ऐसे बॉन्ड्स जो एटम्स के बिटवीन फॉर्म होते हैं, दैट इज एटॉमिक बॉन्ड. दैट इज एटॉमिक बॉन्ड. ओके, और सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स विच इज फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिक्यूलर बॉन्ड. ओके, एटॉमिक बॉन्ड लाइक एज आयनिक बॉन्ड. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड लास्ट मेटेलिक बॉन्ड. मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स लाइक एज वांडर वाल्स बॉन्ड. ओके, तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स. किसके बीच में बनता है? बिटवीन एटम्स. तो हमको पढ़ना क्या है आज? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, और वो भी कैसा बॉन्ड हमको पढ़ना है जो एटम के बिटवीन बनता है. मतलब लाइक एज आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, इसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे जहाँ पे हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और मेटेलिक बॉन्ड आप लोग ऑलरेडी 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, फर्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ओके, तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोथ आर सेम. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? ओके, कहेंगे द बॉन्ड formed by complete transfer. The bond formed by complete transfer of electron from one atom to another. One atom to another is called ionic bond. Okay, so ionic bond formed by complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. Okay, for example, suppose that this is A atom, A is atom and plus B atom. Okay, in the formation of ionic bond, one atom should be metal. One atom should be metal. Okay, and other atom should be non-metal. It means you can say ionic bond always form between metal and non-metal. It means one atom should be electropositive and other atom should be electronegative. Electronegative elements is known as
non-metal, and electropositive elements is known as metal. Okay, suppose that A is a sodium atom and B is the chlorine atom. A is the sodium atom and B is the chlorine atom. Atomic number of sodium 11 and electronic configuration 281. It means valence shell has 1 electron. And Cl atomic number 17, electronic configuration 287. It means valence shell has 7 electron, or 7 electron we can represent with the help of Lewis structure. Okay, suppose that A atom has 1 electron and B atom has 7 इलेक्ट्रॉन. ओके, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि A एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस सेल. इट मीन्स, और यू नो वेरी वेल, इफ एलिमेंट्स हैव 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन in their balance cell, sorry, not 4, 1 2 3 electron. If elements has 1 2 3 electrons in their balance cell, so tendency only lose electron. Okay, or if elements has 5 6 7 electrons in their balance cell, tendency to gain electron. It means that is the electronegative. It means A atom is the electropositive and B atom is the electronegative. Okay, so tendency of A atom, what is the tendency of A atom? Loses electron. Tendency of B atom, accept electron. Okay, तो by complete transfer of electron, है ना, तो A atom क्या करेगा, अपने बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को B atom को ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, और जब ट्रांसफर करेगा, इफ A atom ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू B atom, A atom ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू B atom, अगर A atom इलेक्ट्रॉन को B atom को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, तो A atoms है पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. और B atom पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, है ना. बोथ आर, मतलब दिस इज केटायन, ये बन गया हमारा केटायन, और दिस इज A9. ओके, A atom has positive charge and B atom has negative charge. Both are attracted by electrostatic force of attraction. Both are attracted by electrostatic force of attraction. दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट होकर के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. किसका बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, अब वैसे इसमें क्या होगा, ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम. इट मीन्स सोडियम एटम गेन प्लस चार्ज and Cl atom gain minus charge. Positive and negative both are attracted by electrostatic attraction, electrostatic force of attraction and form आयनिक बॉन्ड. किसका फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, समझ में आ गया होगा आपको. What is the ionic bond? Ionic bond formed by the complete transfer of electron from one atom to another is called ionic bond. Okay, this bond always formed between metal and non-metal. मतलब one atom should be electropositive and other atom should be electronegative. Okay, मतलब मैंने क्या बताया आपको कि in the formation of ionic bond, electropositive element losses electron and converted into cation, while electronegative element accept
electron and converted into anion. Okay, both cation and anion, both cation and anion attracted by electrostatic attraction. Both cation and anion attracted by electrostatic and form electrovalent bond. Okay, in the formation of ionic bond, electropositive element loses electron and converted into cation, while electronegative element accept electron and converted into anion. Both cation and anion attracted by electrostatic force of attraction and form electrovalent bond. ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे MgCl2. तो इन द कंपाउंड या इन द मॉलिक्यूल जो सबसे मिनिमम नंबर में रहेगा, जैसे Mg 1 है, Cl 2 है, तो जो कम रहेगा वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा. तो ये हो गया हमारा Mg, और Cl इसके क्या हो जाएंगे, साइड में, ठीक, या इसके अराउंड रहेंगे कहीं पर भी. Cl, अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 एंड 287 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. ओके, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लुईस डॉट सिंबल. ओके, तो 2 2 4 2 6 1 7 बैलेंस शेल हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन and 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना. इफ देखिए, इफ एलिमेंट्स हैज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस शेल, इट मीन्स दैट इज मेटल. तो यू कैन सी मैग्नीशियम इज मेटल, इट मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. और क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस शेल, इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. सो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस क्लोरीन को और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस क्लोरीन को. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288 स्ट्रक्चर लाइक एज आर्गन एंड स्ट्रक्चर लाइक एज आर्गन, और 28 किसकी तरह, नियॉन की तरह. ओके, अब जब ट्रांसफ़र करेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा नेक्स्ट, Mg प्लस प्लस. वाई, बिकॉज मैग्नीशियम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, to gain 2 positive charge, and Cl 1 minus and 1 minus. Why? Because only gain only 1 electron, एक इलेक्ट्रॉन दोनों गेन कर रहे हैं. अब देखिए पॉजिटिव एंड निगेटिव, केटायन एंड एनायन बोथ आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg प्लस प्लस Cl माइनस एंड Cl माइनस, है ना. वैसे हम बताएं, एक्चुअली आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, यह एक बॉन्ड नहीं, दैट इज द टाइप ऑफ अट्रैक्शन. यह केवल एक टाइप का अट्रैक्शन है. क्यों, क्योंकि बॉन्ड में तो हम ऐसे एक लाइन दिखाते हैं, है ना. दिस इज प्रेजेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, बिकॉज देयर इज अ नो डायरेक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड. जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी देखिए कभी भी हम बॉन्ड नहीं दिखाते. ये एक क्या है, सिर्फ अट्रैक्शन है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि केटायंस एंड एनायंस बोथ आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स, नॉट अ बॉन्ड. ये बॉन्ड नहीं है, ये एक
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो केट आयंस और एन आयंस को एक दूसरे से स्ट्रांगली क्या किए हुए, होल्ड किए हुए हैं, है ना। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसे सेंट्रल जो एटम है, जो केट आयंस हैं और जो एन आयंस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। देयर इज अ नो फिक्स डायरेक्शन, कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, कहीं से भी ये अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे है तो यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, ये यहाँ पे है तो यहाँ से अट्रैक्ट होंगे। तो जो एन आयंस हैं या केट आयंस हैं, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। तो दिस इज नॉट अ बॉन्ड, ओनली टाइप ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है? एक अट्रैक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, है ना। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके द्वारा मेटल और नॉन मेटल बाइंड होकर के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका नाम दे दिया गया है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि एक दूसरे से ये क्या है, बाइंड है। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। बट देर इज नो डायरेक्शन, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको हम बाउंड नहीं कर सकते हैं। ओनली वी कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और केट आयन और एन आयन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम एंड क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो पोटेशियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस सेल एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल रिप्रेजेंटेड बाय लुईस सिंबल, लुईस सिंबल। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए बैलेंस सेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इफ पोटेशियम लॉसेज 1 इलेक्ट्रॉन, इफ पोटेशियम लॉसेज 1 इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम विल बी स्टेबल लाइक एज अ ऑर्गन। ओके, और इफ क्लोरीन एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन देन क्लोरीन स्टेबल लाइक एज अ ऑर्गन। ओके, इट मीन्स पोटेशियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा हमारा K प्लस एंड Cl माइनस। अब पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज बोथ आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट आप बना सकते हैं Na2S का, CaCl2 का, MgCl2 का, ठीक है, MgO का, NaCl का। ओके, दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और taken, the number of electrons given or taken by an atom is called electrovalency of that atom. Okay, the number of elements given or taken by an atom is called electrovalency of that atom, is known as electrovalency. For example, जैसे NaCl, NaCl में Na plus Cl, balance cell has 1 electron and chlorine has 7 electrons.
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, तो सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल, है ना। तो सोडियम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स सोडियम ओनली कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ओनली वन इलेक्ट्रॉन. वन इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा एंड क्लोरीन केवल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं ये Na+ एंड Cl-. बोथ आयंस अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, है ना. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिया सोडियम ने? एक इलेक्ट्रॉन दिया. तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया? 2-8-8 स्टेबल हो गया. ए भी हो गया. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये स्टेबल हुआ, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हुआ? तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हुआ और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हुआ. इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है और इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है. ओके. MgCl2 में MgCl लुईस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. तो Mg एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है ये Mg? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी कोवैलेंसी 2. ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन. इस पे +2 चार्ज, इस पे माइनस. एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोवैलेंसी 1. ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोवैलेंसी 1, है ना. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन by an atom is called electrovalency of that atom. Clear? Okay. Next topic, factors supporting the formation of ionic bond. Okay. Whose factors to support formation of ionic bond? First, ionization energy. Second, electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये क्या हमारा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके. और नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी. These factors supporting the formation of ionic bond. Okay. For example, Na, sodium, atomic number 11, electronic configuration 281. 281, है ना. तो सोडियम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना. इसकी टेंडेंसी क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने मन से थोड़ी ना लूज करेगा. आपने पढ़ा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल. तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी. जब इसको एनर्जी देंगे तो यहाँ से -1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और यहाँ पे बनेगा Na+. तो इसको हम एनर्जी देंगे. ठीक है. कितनी एनर्जी इसको देंगे हम? +495 किलो जूल पर मोल. ओके. सपोज दैट सोडियम इज 1 मोल. नेक्स्ट, Cl एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, है ना. इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऐड होगा. इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऐड होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड होती है. एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टू आउटर मोस्ट सेल. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके. तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हम ऐड करेंगे. 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बनाएगा Cl-. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड एट ΔHe
रिलीज करेगा -348 किलो जूल पर मोल, माइनस में। ओके, इट मीन्स सोडियम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, किसके लिए? फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही, क्यों? फॉर एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमको पता है कि व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जितने भी मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, etc. These are metals या these are yes block elements, और these elements have low ionization enthalpy। इनकी जो ionization enthalpy होती है, क्यों होती है? लो ionization enthalpy होती है। थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ओके, और these elements, ये जो क्लोरीन किधर है? 17th ग्रुप में है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? ये 17th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितना ज़्यादा निगेटिव होगी, जितना ज़्यादा निगेटिव होगी, बनने वाला आयनिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब एक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, किसकी? मेटल की। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा निगेटिव होनी चाहिए, ज़्यादा ऋणात्मक होनी चाहिए। वैल्यू जितना ही ज़्यादा निगेटिव होगा, बनने वाला आयनिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी मिनिमम और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी निगेटिव, मैक्सिमम निगेटिव। अधिकतर जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 है तो बनने वाला आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, बहुत ही इजी वे में बनेगा। ठीक है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या कह सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज 1.7 देन आयनिक बॉन्ड फॉर्म विल बी इजी, इजीनेस, आराम से बनेगा। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ओके, थैंक यू। थर्ड फैक्टर इज लैटिस एनर्जी। लैटिस when 1 mole ionic compound is formed from gaseous cation and gaseous anion, gaseous cation and gaseous anion, then the amount of energy released is called lattice energy. Okay, what is lattice energy? When 1 mole ionic compound is formed from gaseous cation and gaseous anion, then the amount of energy released is called lattice energy. Okay, for example Na, sodium ion. सोडियम आयन इज अ गैसियस, ये किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। ओके, इफ सोडियम आयन लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Na+, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 281। इसका कितना हो गया? 28।
इट इज़ स्टेबल आयन बट इट इज़ प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये तो Na+2 बन गया, इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह हो गया, नियान की तरह, स्टेबल हो गया, तो इसको Cl से बॉन्ड होने की क्या ज़रूरत है? तो आप कहेंगे दिस इज Na+ आयन इन द गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, और गैसियस फॉर्म में कोई भी आयंस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए Na+ Cl- से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बाइंड होकर के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। तो Na+ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल है बट इट इज़ प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। किस स्टेट में है? और इन गैसियस स्टेट में किसकी तरह बिहेव करता है? अनस्टेबल की तरह, ठीक है। और सेकेंड जैसे हमारा क्या है Cl किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उसी इलेक्ट्रॉन को Cl गेन करेगा, तो क्या बनेगा? Cl-। ये भी क्या है? गैसियस फॉर्म में। बोथ आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, Na+ एंड Cl-। अब Na+ एंड Cl- बोथ आर अट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स Na+ एंड Cl-। ओके, दिस इज आयनिक बॉन्ड। अब ये क्या हो गया हमारा? स्टेबल हो गया। हम इसको लिख सकते हैं Na+ एंड Cl-। ठीक है, या चार्ज से चार्ज क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? NaCl। अभी किस फॉर्म में आ गया हमारा? सॉलिड फॉर्म में। और सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया हमारा? स्टेबल हो गया, ठीक है। Na+ एंड Cl- फॉर्म में क्या है? ये अनस्टेबल है। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ओके, तो एक चीज जानिए, इस जब इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, Na जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या होगा? डेल्टा H मतलब हीट। जो एनर्जी हम देंगे जो भी होगा प्लस 495 किलो जूल पर मोल, है ना। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन एटम एनर्जी को लूज करेगा, Cl एटम एनर्जी को लूज करेगा, कितना करेगा? -348 किलो जूल पर मोल। ओके, अब Na+ और Cl- जब ये ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे? NaCl। तो NaCl के फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl दैट इज लैटिस एनर्जी। और एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज होगा किसके फॉर्मेशन में? NaCl के फॉर्मेशन में। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बनने वाला कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, जान लीजिए। जितना ज़्यादा, जैसे Na+ बना तो क्या हुआ? एनर्जी देनी पड़ी, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। Cl- के बनने में क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या बन गया हमारा यहाँ पे? Na+ और यहाँ पे Cl-। Na+ एंड Cl- बोथ आर रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म NaCl। इसके बनने में Na+ और Cl- जब आपस में कंबाइन होकर के NaCl बनाएंगे तो हमारी एनर्जी, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? NaCl। तो जो यहाँ पे NaCl है वो कितना है? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल है। मैंने वही बताया कि व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड या इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बनने वाला आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, वही हमारी क्या है? लैटिस एनर्जी है, ठीक है। अब NaCl कितना है? 1 मोल। अब एक चीज़ जानिए कि अगर मान लीजिए कि इसके बनने में, NaCl के बनने में टोटल जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर मान लीजिए वो 788 किलो जूल पर मोल
एक मोल NaCl के बनने में अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही, कितना 788 किलो जूल मोल, तो फिर NaCl को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करें अगर हम NaCl जो ये हमारा 1 मोल है, इसको अगर हम फिर से कन्वर्ट करें किस में, Na प्लस और Cl माइनस में, तो हमको इतनी एनर्जी फिर से देनी पड़ेगी, कितना प्लस 788 किलो जूल पर मोल। क्यों? क्योंकि इसके बनने में इतनी जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही दैट इज लैटिस एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और 1 मोल NaCl को अगर हम फिर से ब्रेक करेंगे Na प्लस एंड Cl माइनस में, तो जितनी एनर्जी से रिलीज हुआ था इसके बनने में NaCl के 1 मोल NaCl के बनने में जितनी अमाउंट एनर्जी रिलीज हो रही थी, फिर उसको ब्रेक करने में उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारे क्या थे फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर निगेटिव, ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए। लैटिस एनर्जी में क्या होगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड बाई गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बनने वाला आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, देखिए लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट, चार्ज ऑन आयन एंड शेप ऑफ आयन। चार्ज आयन एंड शेप ऑफ आयन। देखिए चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मैक्सिमम चार्ज जितना ज़्यादा आयन पे चार्ज होगा, साइज उतनी ही छोटी होगी। साइज जितनी छोटी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी उतना ज़्यादा होगी और बनने वाला कंपाउंड उतना ही ज़्यादा आयन। ठीक है, आयन का शेप जितना ज़्यादा लार्ज होगा, डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, डिस्टेंस इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना कम होगी और बनने वाला आयनिक कंपाउंड वह अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। साइज जितनी लार्ज होगी आयन की, डिस्टेंस इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, शेप जितना बड़ा होगा डिस्टेंस इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा उतना ज़्यादा होगा, जिससे लैटिस एनर्जी मिनिमम होगी, कम होगी और मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल होगा। क्वेश्चन है विच इज मोर आयनिक, जैसे NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। ओके, तो इसमें देखिए सभी इसमें सेम है। कौन? Na इज सेम इन ऑल कंपाउंड्स। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो वह सबसे ज़्यादा क्या होगा? आयनिक होगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी वह सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। इसका मतलब NaF इज मोर आयनिक इन कंपैरिजन NaCl और फिर NaBr और NaI, ये ऑर्डर होगा। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर आयनिक? LiCl, NaCl, KCl,
RbCl। ओके, अब इसमें देखिए Cl इज कांस्टेंट इन एवरी मॉलिक्यूल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका। और सबसे ज़्यादा निगेटिव, क्योंकि Cl क्या है? कांस्टेंट है, तो जिसका शेप ज़्यादा होगा। एक चीज़ देखिए, ये बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, और Cl क्या है? सब में कांस्टेंट है। उसका मतलब जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी वो कांस्टेंट है, तो जिसकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी, साइज सबसे ज़्यादा टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसका मतलब RbCl इज ग्रेटर देन KCl, फिर NaCl और फिर LiCl। ओके, तो ये है हमारा विच इज मोर आयनिक। सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है? Rbq, इसकी साइज सबसे ज़्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स, enjoy with chemistry. I will meet in next class with next topic. Thank you.